Take your awareness at the base of your spine. As you inhale, travel from your base of spine to the upper portion of your spine. Go up to your eyebrow center. When you exhale, again go from your eyebrow center again to the base of your spine. Repeat this process 3 times. Going up in your spine with your breath inhalation, going down, feeling the sensation, relaxing your limbs. Once again go up with inhalation, go down, relax. Now we will check our posture again. Relax your joints of your fingers of the feet. Relax your ankle joint. Relax your knee joint. Relax your hip joint. Relax your spinal vertebrae. Relax the fingers of both hands. Relax your wrist joint. Relax your elbow joint. Relax your shoulder joint. Neck relax. Whole facial muscles relax. Now your posture is getting stable and deeply relaxed. Sthiram Sukham Asanam. Maintain an inner relaxation. Feel that stillness. Now you can feel your breath. As your body gets still, breath comes into the picture of your awareness. Feel your tummy going out, in. Touch of your breath in your nostril, in your chest. Now, we will regulate our breathing to regulate our mind using the process of Purak, Rechak, Kumbhak. For 10 count we will inhale, 10 count we will hold, and 10 count we will exhale. 6 breaths. Please follow the instructions. Start inhaling for a 10 count. Long breath. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold for 10 count. Kumbhak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly exhale from your nostril in 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again inhale for a count of 10. 1, 2, 3, 4. Be comfortable. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again exhale deeply and completely, keeping a posture relaxed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 more breaths to go in a very relaxed manner. Don't tense yourself. Inhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again inhale 1, 2, 3, 4. Don't move please. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last breath. Inhale 1, 2, 3. Keep your shoulder relaxed. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deeply exhale out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax completely. Let your breath flow naturally. Now breath is deeper, longer and slow. As a result, your mind is relaxing, thoughts are minimizing. Enjoy that calmness which is within all of us. Keep your posture correct, breathing correct. Now, if you maintain this breathing, slowing will lead you to a state of pratyahara. Slowly your senses are silencing, mind is relaxing. Feel that relaxed state. Your intelligence is completely silent. Now we will go for Pranav Jap. First we will do Vachak Jap, then Mansik Jap, and completely silence. Now we will do Dharana on Omkar Jap. We will do Omkar Jap continuously. You can imagine that Omkar in front of your eyebrows and chant it deeply engrossed in that mantra. Only that mantra, concentration on Om. Now we will start the chanting. Take a deep inhale, continuous repetitive Omkar Jap. Om, 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 Om. Take a breath again. Keep on continuing. Keep on continuing. Om, 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 Om. Om, 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 Om. Om, 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 Om. Keep on continuing with more intensity. Om, 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 Om. Om, 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 Om.
Om, Om. Now slowly chant it slowly with very less sound that you can hear. Om, 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 Om. Om, 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 Om. Om, 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 Om. Now chant the mantra in a whispering form that you can only hear. Now silently chant the mantra within your mind. Continuous repetition of Omkar. You can visualize the symbol of Om to make it more intense. Keep on chanting Omkar repetitively. Dharana, concentration on Om. Keep your eyebrows fixed at Agya Chakra and keep on chanting the mantra. Whole mind engrossed in the mantra chanting. No other thing, only that mantra. Keep on repeating like the flow of river, the mantra. As a river sing that Omkar, you also singing that Omkar. Keep on focusing on the mantra, feeling the energy, feeling the power. Whole being is engrossed in that Omkara. Go deeper. Repeat that Mansik Japa with full bhava and focusing on the Artha. Now, when the mind is silent, drop the mantra and enjoy that continuous inner sound of Omkar within all of us. Taking you to the state of dhyana, naturally meditation, enjoying that silence, restful state. Just remain there for a few moments. Within yourself, without you, Omkar sound is resonating, taking your awareness to the deeper level. Enjoy that state of oneness, complete absorption. Breath is very slow, but you are awake. This state of silence flowing like a flame of oil drop, continuous without any break.
mind in that silence as much as possible. Or enjoying your natural state of harmony, relaxation, mind one pointed. Now slowly you will withdraw. Again, observe your mind. Be aware of your breath. Slow, rhythmic breath. Making your mind peaceful like a large sea, unmoving. Again, be aware of the weight of your body, surrounding, sounds from your surrounding. Gently join your both hands together. One Omkar. Gently rub your both hands together. Put them on your eye, face muscles. Gently awake yourself. See your palms and gently seeing your palms, come back. I hope it is easy for you if you are following the instruction. Clear? चलिए वापस आ जाते हैं. Now silence is good. Now let's come to the activity. So we have now experienced how that we can go to that meditation. Slowly it's like a process. We progress step by step. I hope today you observed we first prepared our body, that is our posture. Once our posture is still, that is Sthiram Sukham Asanam. Then you are aware of your breath. You still your body. You observe your joints. So that free flow of energy throughout your body joints. You withdraw your energy from your muscles and withdraw by observing. Have you seen like we just rotated our awareness from the joint? So that withdrawn your energy. So your limbs look like they are perfectly silenced. So first was the posture, that is Yogasana. Before that we have already seen that Yama and Niyamas. Then Asana. After balancing the posture, stilling our body, spine erect, eyes focused at your Agya Chakra, chin parallel to the ground, both hands in Dhyana Mudra, the mudra of meditation, one hand over the another like that. Thumb join with each other, so that our energy will not get dissipated. It will get recirculated to our brain centers, which is going to rejuvenate us again. Now we want to conserve our energy. After doing that, we went to breath regulation so that we can withdraw our energy within. Same Ashtanga Yoga we followed that. So we did Purak, Rechak, Kumbhak simply in the ratio of 1:1:1, that is 10 inhalation, 10 holding, 10 exhalation. So what that did? It helps in Dharanasu cha yogyata manasaha. And pranayama is Tasmin Sati
श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायामा। हमने क्या किया, श्वास को प्रश्वास को रेगुलेट किया। जैसे हम लोग गाड़ी की स्टीयरिंग को रेगुलेट करते हैं, कभी राइट कभी लेफ्ट, सो दैट हम मध्य में जहाँ हमें चलना है वहाँ चल सकें। तो क्या हुआ, हमारा कुंभक पूरक रेचक से श्वास खुद ब खुद धीमा हुआ। कितनों ने ये फील किया दैट योर ब्रेथ इज स्लोइंग डाउन? हैव यू फेल्ट दैट? नेचुरल। कितनों ने ये फील किया विद द फ्लोइंग ऑफ योर ब्रेथ योर माइंड नेचुरली बिकम स्लोड, you are more aware of your thoughts? It's experiential, you can feel that way, but that ratio should be proper. Slow, एक अच्छी श्वास की क्या क्वालिटी है? 4 क्वालिटी होती है। स्लो यानी मंद धीमा, डीप यानी गहरा, लॉन्ग यानी लंबा, कॉन्शियस यानी चेतनता से लिया हुआ श्वास। और वहीं जब आप गुस्से में, एंगर में, तनाव में होते हो तो आपकी क्या क्वालिटी होती है? छोटा श्वास होगा, तेज श्वास लोगे आप एक डॉग की तरह, और हम श्वास ऐसा तभी चलेगा जब अपनी ब्रेथ को लेके अवेयर नहीं है। तो इसके द्वारा हमने क्या किया, धारणासु चा योग्यता मनसा। दूसरा एक और यहाँ पे पतंजलि ने सुंदर बताई है बात, तथा क्षीयते प्रकाशा वर्डम। आंखें बंद करते तो क्या दिखता है सबको? हमें अंधेरा ही अंधेरा। क्यों? अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण। तो जो भी व्यक्ति प्राणायाम का नियमित अभ्यास करेगा तो क्षय का मतलब समाप्ति, खात्मा, धीरे धीरे जो अंधकार अविद्या है वो खत्म होने लगेगा। जैसे एक मिरर पे बहुत सारी मिट्टी जमी हुई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, डार्कनेस है। क्या रियल मिरर का नेचर ये है डार्कनेस? नो, उस पर धूल मिट्टी इतनी जमी है इसलिए दिख रहा है। तो उसी तरह हमें भी आंख बंद करके सब अंधकार क्यों दिखता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा तमस और कहीं ना कहीं दैट इग्नोरेंस इज देयर। तो क्या होगा, तथा क्षीयते प्रकाश आवरणम। जो क्षय किसका? आवरण यानी एक परत, जो झिल्ली है। जैसे एक माँ का गर्भ होता है तो गर्भ की जो झिल्ली होती है उसकी वजह से जो बेबी होता है वो ढका होता है, उसी तरह हमारा जो वो प्रकाश स्वरूप है उस अविद्या, उस अंधकार रूपी परत की वजह से छुपा हुआ है। एक दिन शायद आप में से किसी ने कहा था कि सर ईश्वर का रूप तो प्रकाशमान है, दैट्स द रे ऑफ लाइट। कौन था वो जिसको पता थी ये पतंजलि की बात? लग रहा है सीमा जी ने शायद ऐसी बात की थी, मुझे कुछ ध्यान आ रहा है। तो दैट इज द नेचर। सो 2 फायदे हैं प्राणायाम के, तथा क्षीयते प्रकाशवर्णम, और दूसरा धारणासु चा योग्यता मनसा। आप में से कोई है जिसको अपनी लाइफ में कंसंट्रेशन नहीं चाहिए? कोई है यहाँ पे? सबको चाहिए होगा। तो सिंपल सा पतंजलि आपको बात कह रहे हैं कि धारणा कैसे बढ़ेगी। सबको, मुझे बहुत लोग मिलते हैं कहते हैं भाई सब तो ठीक है, ऐसा कुछ योगा बताओ माइंड कंट्रोल हो जाए, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं ये सारी बात को समझने के लिए। आप उनको एक गोली दे दो बस, वो खाएं और उनका माइंड शांत हो जाए। क्लियर? क्योंकि 2 मिनट वाली मैगी चाहिए अपने को, तुरंत तुरंत होना चाहिए। वैसे नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, सिंपल सी बात है कि मन को अगर नियंत्रित करना है तो प्राण को नियंत्रित करें। आप मन को कभी रोक नहीं सकते, ये तो आप लिख के ले लो अभी मेरी बात। आप मन को क्या है, सिर्फ स्लो डाउन कर सकते हो। और उसी तरह आपकी गाड़ी जो होती है उसके अंदर स्लो डाउन करने के लिए क्या होता है, बहुत मज़ा आता है ना गाड़ी को तेज चलाने में। मन की शक्ति ऐसी है, बहुत ही तेज, प्रकाश से भी तेज। लेकिन जब उस अनियमितता से चले तो हमारे लिए दिक्कत है, अनरैंडमली चले तो दिक्कत है। आपको कोई बिजनेस क्रिएट करना है तो दिमाग की शक्ति चाहिए, बुद्धि शक्ति चाहिए। लेकिन अगर वो आपके हिसाब से ना सोच पाए एक पैटर्न में, रिदम में, तो दिक्कत है। क्लियर? तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या बताया, आप
यही कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मनः चंचल, मन क्या है, बहुत चंचल है, एक बच्चे से भी ज़्यादा चंचल। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए? पूरी दुनिया ढूंढ रही है, आप देखोगे कितने लोग कितनी गोलियों में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बट पतंजलि यहाँ आप वही वाली बात है कि बिना डॉक्टर, यही वाली बात 2,000 रुपये का आपको पर्चा बना के लिखेगा तो आप ज़रूर मान लोगे, लेकिन कोई फ्री में आपको बताएगा तो अरे ये तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पतंजलि सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि श्वास पे ध्यान। अब आप लोग बताओ कितने लोग अपनी श्वासों का ध्यान करते हैं बिना वजह, जब तक हार्ट अटैक ना आए, या जब तक बस को पकड़ना लेट ना हो रहे हैं, दौड़ लगानी पड़ रही है, ट्रेन लेट हो रही है तब दौड़ लगानी पड़ रही है, वहाँ हमें हमारी श्वासों का ध्यान आता है। उसके अलावा हमें किसका ध्यान रहता है बताओ? दूसरा यहाँ एग्जाम्पल, कछुए की आयु कितनी होती है किसी को पता है? हाउ मच आर टॉर्टॉइस लिव? शायद मैंने पहले भी बताया होगा अगर आप मेरी क्लास में आए होंगे, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1000 ईयर मैक्सिमम तक है। लाइक मैक्सिमम तो कोई उसकी वो नहीं है, लेकिन मिनिमम 300 to 500 ईयर्स, 300 से 500 साल तो जीता ही है। एक व्यक्ति की आयु कितनी होती है? आज तो कम हो गई है वैसे तो नहीं, वैसे अगर आप डेटा देखोगे तो अभी एवरेज जो आयु है वो व्यक्ति की बढ़ गई है। यू नो वाई? क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत बढ़ गई है, हमारा सब कुछ बहुत दर्द है बॉडी में, लेकिन हम फिर भी जीना चाहते हैं, और वो मरने से भी कहीं ना कहीं ख़तरनाक ज़्यादा हो जाता है, इतना दुख है, पेन है कहीं ना कहीं, है ना? तो ये अपने को देखना पड़ेगा। तो और हमारा श्वास और कछुए का श्वास और एक कुत्ते का श्वास, डॉग, डॉग की एज कितनी होती है? सर मुश्किल 6 से, साल से 12 साल तक। हाँ मुश्किल से 10 से 12 साल जीता है। अब हम सब सर तो, कुछ की 6 साल भी होती है। हाँ 6 साल भी हो सकती है, अलग अलग ब्रीड है। तो इसके लिए आप देख सकते हो, हम सब बुद्धिजीवी प्राणी हैं, तो खोज निकाल के मुझे बताइए कि क्यों ऐसा बदलाव है सबकी आयु में। जलवायु एक, पानी एक, सूर्य एक, सब खाना भी खा रहे हैं, इतना अंतर आयु में कैसे? और यहाँ पे इसको भी आयाम को कुछ लोगों ने तोड़ा है, जैसे वाराणसी के एक संत हैं त्रेलंगा स्वामी, 280 साल जिए वो, 280 ईयर्स। और अभी जो जीवित हैं एक शिवानंदा जी, आई थिंक अभी इनको पद्म विभूषण भी आई थिंक मिला, सबसे उच्च सम्मान, तो वो भी आई थिंक राइट नाउ ही इज 125 ईयर्स ऑफ एज। व्हाट इज द सीक्रेट? इज द फूड? इज द मनी? इज द प्रॉपर्टी? इज द हैप्पीनेस? what is the secret of your long, healthy, happy life? Can anyone guess? बताइए। लाइफ स्टाइल और अपने मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कोई एक चीज नहीं बोल सकते हम। ध्यान, योग, खान पान, जो हमने साथ अभी आपने जो हमको नियम नियम आप बताए हैं वो सभी का पालन करो। लेकिन और भी कोई स्पेसिफिक सोचेगा? अभी हम बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, सबका एक सूत्र क्या है? श्वास, श्वास और प्रश्वास। रिसर्च हुआ, यस, there's a research that there's a deep connection between a human being and his mental functions। एक व्यक्ति की चेतना, व्यक्ति का मन और उसके श्वास में बहुत बड़ा गहरा संबंध है। ये आप सब अपने अनुभव से भी जान सकते हो, और अभी आप लोग बहुत शांत महसूस कर रहे होगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि जस्ट फ्यू मिनट्स एगो वी डिड अ मेडिटेशन देयर, वी रेगुलेटेड आवर ब्रेथ, आवर हार्ट इज फीलिंग रेस्टेड, माइंड इज फीलिंग रेस्टेड। और हार्ट और ब्रेथ ऐसी क्रिया है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती है। ऐसा नहीं कर सकते कि यार अभी मैं 2 घंटे नींद में जा रहा हूँ तो हार्ट को रोक देता हूँ, ब्रेथ को रोक, नहीं। क्यों? खाने के लिए तो हमारे शरीर में हमारे को भगवान ने एक स्टमक नाम का ऑर्गन दिया है जहाँ फूड स्टोर हो सकता है,
लेकिन हमारे अंदर वायु या प्राण को स्टोर करने का कोई अंग नहीं दिया है जहां हम स्टोर कर सकें। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइव मैच आता है ना, जैसे हम लोग लाइव मैच भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड मैच भी देख सकते हैं। अब सोचो अगर रिकॉर्ड करने की सुविधा ही नहीं होती तो लाइव ही मैच देख सकते हो आप। तो श्वास के केस में वैसा ही खेल है, लाइव श्वास चलनी पड़ेगी। यहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि रिकॉर्डेड, अरे हम ऐसा करते हैं, आप 2 दिन श्वास नहीं लेते हैं, रिकॉर्डेड श्वास ले लेंगे, जैसे आप कहते हैं ना वीडियो मंगा लेंगे हम RFM अकेडमी से। ऐसा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज ही नहीं है। कोई हमारे अंदर है अंग ऐसा जहाँ श्वास स्टोर होती है? तुरंत वो तो लाइव ही हमें लेनी पड़ेगी। हम एक दिन में कितनी श्वासें लेते हैं? एनी आइडिया? एक जो स्वस्थ व्यक्ति है, एनी हेल्दी पर्सन, हाउ मच ब्रेथ इट ही टेक्स? एनी आइडिया? कोई है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो उसको आइडिया लगाने की आदत बड़ी अच्छी होगी। हाँ जी। लॉटरी टिकट खेलने वाला हो कोई यहाँ पे शख्स? हो सकता है, अच्छा काम है वैसे। लाखों में होगा, काउंटिंग तो लाखों में होगी obviously। और लाखों में, मैं मतलब लाखों में ही खेलती हैं, उससे कम नहीं है। और कुछ? कोई 1000-2000 में भी खेलने वाला हो व्यक्ति? कोई नहीं है। आप एक आइडिया लगाओ, आप 1 मिनट में श्वास कितनी लेते होगे? अच्छा 1 मिनट में अंदाजा कितनी श्वास लेते होगे आप? कुछ अंदाजा? 120। 120? और कोई? ज्यादा है 120 श्वास तो आप कपालभाति के टाइम करते हो 1 मिनट में, मैक्सिमम है ही है बाय द वे। हाँ जी। दूसरा? 8 to 10। 8 to 10 ममता जी के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसीलिए ममता जी हमेशा प्रसन्नचित मुद्रा, शांत अवस्था में रहती हैं। अगर आपकी श्वास 8 से 10 तक जा सकती है ना, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम ध्यान की अवस्था में रहोगे। अगर आपकी श्वास इतनी रह रही है तो यू आर वेरी मेडिटेटिव, क्योंकि श्वास का संबंध आपके मन के साथ है। और कोई? संगीता जी की 120 श्वास है, इसीलिए संगीता जी हाइपर एक्टिव रहते हैं। हाँ। ममता जी शांत। और कोई? बोलिए बोलिए। श्रीवास्तव जी तो कुंभकी लगा के रहते हैं, मुझे लग रहा है एकदम, सर मेरी तो श्वास चलती ही नहीं, जीरो ख्याल से 20 के आसपास होती है। संजय जी आप बताएं सर, आप तो बहुत समय से हैं, कुछ अंदाजा? 15 से 17 श्वास। देखिए बिल्कुल अचूक निशाना है, एकदम मछली की आंख पे जैसे अर्जुन ने लगाया था और संजय जी ने यहाँ पे हिसाब लगा दिया। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वासें जनरली 15 से 20 के बीच होती हैं। सो लेट अस अज्यूम आज मैथ की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? बहुत दिन हो गए होंगे, कैलकुलेशन नहीं किया होगा। मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है? जो भी पेन कॉपी है उसी से निकालेंगे। डोंट यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। इफ़ यू टेक अ ब्रेथ ऑफ 15 ब्रेथ पर मिनट, हाउ मैनी ब्रेथ यू विल टेक इन अ डे? अगर आप 1 मिनट में 15 श्वासें लेते हैं तो एक दिन में कितनी श्वास लेंगे? देखते हैं आज मल्टीप्लिकेशन कितना फास्ट है। किसी का प्लीज़ इंतज़ार मत करें, अपना अपना सॉल्व करें कि अभी कोई हमारा दोस्त मदद कर देगा तो उसका असाइनमेंट कॉपी कर लेंगे। हाँ जी बोलिए। और अगर आपका माइंड सुपर कंप्यूटर है तो मन में ही बता दीजिए मुझे उत्तर निकाल के। बोलिए। 13,600। मैम मैथ की क्लास में दोबारा से एडमिशन लीजिए आप, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, दोबारा से प्लीज़ एलिमेंट्री में जाएं और थोड़ा सा एडमिशन लें। और कोई? यस सर, यस सर। अगर 21,600 आपका बच्चा आपको देख रहा होगा तो उसको आज समझ आ जाएगा, हाँ मैं मम्मा से नहीं पढ़ा। 21,000 सर, 21,600। अच्छा बाकी को चेक करने दीजिए, अभी अभी पता चले, आपके फ्रेंड चेक करेंगे आपको। चलो 21,600 सर। श्रीवास्तव जी ने तो लग रहा है ऐसा सोचा, सर मैं कोई कर्मा क्रिएट नहीं करूंगा, इनको जोड़ने तो जिसको जोड़ना है। श्रीवास्तव जी चलिए। नहीं सर, इसका ये जो है हमने पढ़ा था कहीं, वो 216 करके कुछ है, 2,16,000 या 21,600 इस टाइप में कुछ है, बट मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं इस पे एक्सरसाइज देकर रहा हूँ क्योंकि सारे लोग कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी है ना, अपने आगम का यूज कर रहे हैं, अपनी मेमोरी जो उन्होंने पुस्तक कोई पढ़ी थी अब उसके ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं वो, है ना? चलिए कोई बात नहीं।
216 का कोई फार्मूला है? यस, बाकी लोग अभी प्रत्यक्ष करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कैसे होता है। हाँ बताइए भाई, एग्जाम ओवर हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, 2 मल्टीप्लिकेशन करने हैं बस। 15 इंटू 60 इंटू 24, हाउ मच? हाँ जी, 100 सर। कितना बोल रहे हो चित्रा जी? सर मैं 15 का ही बस कर रही हूँ, 15 से लगभग 15,000। मतलब 1 मिनट में 15 नहीं सर, 1 मिनट में 15। ये तो क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले ही बता दिया मैंने आपको। अगर 1 मिनट में 15 श्वास लेते हैं तो 1 दिन में कितना ले रहे हैं? 100 सर। चलिए कोई बात नहीं। संजय जी आपने निकाला? मैथ्स अच्छी नहीं लगती? चलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैथ कमजोर है सर। अरे सर, फिर अपनी इनकम कैसे जोड़ेंगे हम लोग? हाँ चलिए वापस आ जाते हैं। हाँ तो आंसर सही है श्रीवास्तव जी की मेमोरी से, सीमा जी की कैलकुलेशन से 21,600। ये हमारे सर इसका एक चक्कर और है। 21,600। 1 by 1 प्लीज। यस सर इसका एक चक्कर और है। ये बोलिए। जो 9 है ना, 369, तो ये इसका जो जोड़ है वो 9 ही जाता है, इसलिए मुझे 216 याद था। वो भी ये 9 9 है। जो है अपेक्स नंबर है। Okay. और ये 7 से तमाम चीजों से जुड़ा हुआ है ना। हाँ 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 तो हाँ। वो वाला फिगर याद था, लेकिन वो 1000 है, लाख है, होता नहीं। तो वेरी ध्यान नहीं दिया उस नाइस, पे। ठीक है। तो आप सीमा जी ने सही बताया, हम एक दिन में 21,006, हम नहीं, लाइक जो भी स्वस्थ एक नॉर्मल हेल्थ है उनकी, और ममता जी के तो केस में ये कम हो जाएंगे क्योंकि श्वास उनकी कम है, तो इसलिए माइंड रिलैक्स है। तो यानी वो अपने बैंक अकाउंट का खर्चा कम कर रही हैं, इसलिए उनकी आयु बहुत लंबी होगी। क्लियर? अब सोचो आप डेली अपने अकाउंट में 21,600 श्वासें डिपॉजिट कर रहे हो। अब कोई व्यक्ति 21,600 एक दिन में ही ले रहा है। कोई व्यक्ति जिसकी श्वास सपोज जो जैसे मान लिया हाइपरटेंशन है या बहुत तनाव है, तो ये आपकी 15 से श्वास 35 और 40 तक भी पहुंच सकती है, 35 और 40। सो कैन यू इमेजिन, डबल ऑफ 21, यानी वो 2 दिन का जीवन एक दिन में ही बिता रहा है। एक तरह से आप वैसे अगर कैलकुलेट करोगे तो जितनी ज़्यादा श्वासें, और आपने सुना होगा कि हमारे दिन नहीं, हमारी श्वासें कैलकुलेटेड होती हैं कि कितनी हम श्वासें लेने वाले हैं, प्राण हमारा कितना हम खर्चा करने वाले हैं, वो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। क्लियर? सो प्राणायाम क्या कर रहा है? आपकी श्वासों को धीमा कर रहा है। तो डेली अगर आप 15 मिनट प्राणायाम कर रहे हो तो सोचो, अगर 1 मिनट में आपकी श्वास 1 या 2, सपोज 10:10:10 आज जो हमने किया 30, यानी 1 मिनट में हमने 2 श्वासें ली। तो जनरली जो हम 15 ले रहे हैं, 2 13 श्वासें बच गई। यानी अगर हम डेली 15 मिनट तक प्राणायाम करेंगे तो हमारा 15 मिनट जीवन लंबा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? वही खर्चा करना है हमें उतनी श्वास का, लेकिन हम कितने दिन में, कितने धीरे। अब डॉग की श्वास क्यों इतनी जीवन कम है? क्योंकि उसकी श्वास बहुत ज़्यादा होती है। कछुए की सिर्फ 1 मिनट में 2 से 4 श्वास लेता है उसको, इसलिए उसकी आयु इतनी लंबी है। क्लियर? सो ब्रेथ इज वेरी डीप एंड इट हैज़ अ डीप कनेक्शन विद योर बॉडी एंड माइंड। कहते हैं प्राण और श्वास ही है जो आत्मा को, इस शरीर को मन से बांध कर रखता है। श्वास के द्वारा जो लोग अपने, बहुत से योगी होते हैं श्वास को थाम लेते हैं तो वो कुछ समय के लिए शरीर से मुक्त भी हो जाते हैं। बहुत सारे योगियों के आप कमेंट्रीज पढ़ सकते हो, बायोग्राफीज हैं, तो बहुत से लोगों ने ऐसा दर्शाया भी है। इसमें पहले थे स्वामी रामा। स्वामी रामा के बारे में जानते होंगे। वो जब फेमस हुए, एक बार उनको कहाँ देखा गया कि वो बहुत सारे क्रोकोडाइल के बीच में ध्यान कर रहे थे। एक नदी के किनारे बहुत सारे क्रोकोडाइल मकर आसन में थे और उनके बीच में वो ध्यान लगा के बैठे हुए। इसका ये मतलब नहीं है आप लोग भी क्रोकोडाइल ढूंढ के ध्यान करो जाके, मैं उनकी बात बता रहा हूँ आपको बस।
तो वो ध्यान में बैठे हुए थे, तो कुछ फोटोग्राफर्स न्यूज़ रिपोर्टर तो आ ही जाते हैं, उनकी एक फ़ोटो खींच ली किसी ने और वो बहुत वायरल हो गई। तो वहाँ से लोगों को पता चला कि स्वामी रामा नाम का कोई व्यक्ति भी है। वो इतने स्थिर थे, इतने शांत थे। कल पढ़ा था हमने, अहिंसा अहिंसा वैर त्यागा। जो व्यक्ति इतना निर्मल शांत होगा उसके अंदर जो भी बगल बगल वैर नहीं कर पाएगा कोई। सो ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद फिर उनको फॉरेन बुलाया गया। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में सबसे पहले व्यक्त करने वाले फॉरेनर्स को क्या लगता था कि आपके श्वास को, मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये क्या उनको मानते थे? इनवॉलेंट्री फंक्शन। मैम ने शायद पढ़ाया होगा आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में, दैट योर ब्रेथ इज अ इनवॉलेंट्री फंक्शन। यस, योर हार्ट बीट इज अ इनवॉलेंट्री फंक्शन। लेकिन उन्होंने क्या दर्शाया कि वो, आई थिंक पूरा आप रिसर्च पढ़ सकते हो, ऑनलाइन है अवेलेबल, 10 to 15 मिनट्स काफ़ी देर तक बिना श्वास के ही रहे। उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, नो प्रॉब्लम। उनके सेंसर्स ब्रेन पे लगाए गए एंड ही वॉज कम्प्लीटली स्टडी। ये रिसर्च है, सबसे पहले देखने को मिला दुनिया को। वहाँ से फिर समझ में आया साइंटिस्ट को, नहीं, ब्रेथ को मैनेज किया जा सकता है और ब्रेथ के हिसाब से आप अपने माइंड को मैनेज कर सकते हो। क्लियर? तो स्वामी रामा का बहुत कुछ कंटेंट है, ट्राई टू गो विद दैट। तो आपको एक रिसर्च मिलेगा। हाँ जी। सत्य रामन के बारे में पढ़ा था, ये स्वामी रामन एक ही है या अलग अलग? नो, स्वामी रामा, इट्स नॉट स्वामी रमन, स्वामी रामा। ठीक है। तो उनका द हिमालयन इंस्टीट्यूट भी है, आई थिंक नियर बाय बियॉन्ड हरिद्वार से आप आगे जाओगे, आई थिंक ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में गया था मैं एक बार। तो वहाँ पे उनका इंस्टीट्यूट है द हिमालयन इंस्टीट्यूट बाय स्वामी रामा। मेडिकल इंस्टीट्यूट भी है और योगा का भी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, ही डिड सो मैनी थिंग्स, बहुत उनके बारे में चर्चा है, तो आप उसको देखिएगा। सो मैनी थिंग्स ही डिड। वापस आते हैं हम लोग। यस, सो दिस वॉज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर प्राणायाम। तो प्राणायाम का प्रिंसिपल यहाँ पे पतंजलि ने बताया आपको। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। दुनिया के तमाम सारे, मतलब जितने देश हैं, तो उन सारे देशों में जो स्टडी हुई है कि किन देशों में उनके कुछ जगहों पे जो लोग कॉमनली ज्यादा जिंदा रहते हैं, तो तकरीबन 7 या 8 जगहों की स्टडी पूरे दुनिया में गया है कि जनरली वहां की 100% पॉपुलेशन 100 साल से ज्यादा जिंदा रहती है। 120 साल, 130 साल, 135 साल। तो ये 6-7 जो रिसर्च की गई है, तो एक तो जो संगीता जी ने बताया लाइफ स्टाइल, लेकिन ये जो श्वास वाला चक्कर है ना, वहां नहीं मिला। तो इसका चक्कर क्या है? क्योंकि ये जो श्वास, जैसे हम ये मानते हैं कि अगर श्वास क्रिएटिव स्टेज में होगी तो हम ज्यादा जिंदगी जिंदा रह सकते हैं, ज्यादा अच्छी क्वालिटी रह सकती है। लेकिन वहां श्वास का ऐसा कोई फार्मूला नहीं मिला कि ये श्वास उनकी कैसे, क्योंकि वो अपनी तरह से जिंदा है और वो जनरली 120 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। यस, सो द थिंग इज, अब इससे मुझे एक बात ध्यान आया, एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था यूट्यूब पे। ही वॉज ऑल्सो लाइक सो मच ऑफ हायर एज। तो उनसे पूछा गया कि आपकी लंबी आयु का क्या सीक्रेट है। बाय द वे, ही इज नॉट अ योगी, ही इज नॉट फॉलोइंग एनी योगा लाइफस्टाइल. He smokes a cigar and do everything whatever that he has to do. But he said 2-3 very beautiful things if you look at it. One thing he said, still I don't have any job to do, but still I have a farm on which I go and I give daily food to the hands that I am taking care of. तो फार्म पे भले, जैसे होता है ना, लोग रिटायर हो जाते हैं तो दे लीव एवरीथिंग, दे स्टिल लिविंग लाइक दैट। इसने क्या कहा कि मैं डेली सुबह और शाम को जाता हूँ और जो मेरे फार्म पे एनिमल्स हैं उसको दाना देता हूँ। तो लाइक आई एम कनेक्टेड, आई एम एक्टिव इन माई लाइफ। फर्स्ट थिंग वॉज दैट। सेकेंड थिंग इज माई रिलेशंस।
मेरे लोगों के साथ संबंध किस प्रकार के हैं। अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो आपका जो मानसिक तनाव है वो कहीं ना कहीं आप रिलीज करते रहते हो। यू टॉक टू अदर्स, यू कनेक्ट विद अदर्स। कोई प्रॉब्लम आई आप उसका फटाक से सॉल्यूशन निकाल लेते हो, तो मन आपका बहुत रिलैक्स रहता है। एंड सेकेंड थर्ड थिंग दैट ही सेड that I was not making myself rigid in anything, I was living a very free life. सो जो उसके केस में 3 इंपॉर्टेंट बातें थी वो क्या, कि किसी ना किसी एक पर्पस या गोल लाइफ में मन आपका लगा रहे, कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर दैट। होता है ना। अब बताओ 60-65 तक किसी के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ काम है लाइफ में, हमारा मन बिजी रहता है। बट जैसे ही काम वो खत्म होता है, माइंड बिकम्स लाइक कि अब क्या करूँ क्या करूँ। बट ही केप्ट दैट वन एक्टिविटी इन लाइफ परमानेंट, लाइक आई विल गो टू फार्म्स एंड डू ऑल दिस। सो मे बी, और सेकेंड आपके इसका पॉइंट ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि जो रिसर्च आप बता रहे हैं उन्होंने, क्योंकि जब भी एक रिसर्च की जाती है तो उसका एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट आउट ऑफ रिसर्च। उसके बेसिस पे हम सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं। पॉसिबल है कि उनके माइंड में जो योगा का कंटेंट है वो ना हो, इसलिए वहाँ पे आपको ब्रेथ का कोई भी पॉइंट देखने को नहीं मिलता है। बट व्हाट यू कैन डू इन दैट एडिशनल, बहुत सारी रिसर्च आजकल हो रही हैं, तो यू सर्च सम लेटेस्ट रिसर्च, एंड रिसर्च इज समथिंग, इट्स अ रीसर्च, नथिंग फिक्स्ड, अगेन एंड अगेन सर्चिंग, योर नॉलेज गेट अपग्रेडेड। तो मे बी शायद कोई नया रिसर्च हुआ हो। बाय द वे आप जो कह रहे हो वो भी पॉसिबल है। देखो योगा को रिजिडली, अब दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ, श्वास करने के लिए प्राणायाम ही नहीं। आप में से बुक्स कितने लोग पढ़ते हैं? म्यूजिक, डांस। सो क्या आपने जब म्यूजिक डांस को फॉलो करते हो ये स्लोइंग ऑफ ब्रेथ को महसूस नहीं किया, जहाँ आपका मन पूरी तरह से उस क्रिया में तल्लीन हो जाता है? वहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। सो योगा इज हैपनिंग। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम जब तक ये नाक को बंद नहीं किया, प्राणायाम जो आपका सूक्ष्म प्राण है वो नियमित हो, एक लयबद्धता से चले, दैट इज प्राणायाम। तो उनके साथ भी होता है, जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ध्यान वहाँ पे भी हो सकता है। 3 घंटे आपकी धारणा चलती रहती है, समय खत्म हो जाता है आपके एक्सपीरियंस में, हाँ 3 घंटे हो गए, मुझे तो लगा अभी तो मैंने शुरू किया था। कनेक्ट विद दैट ऑल्सो। तो वहाँ पे भी ये चार ही जुड़ते हैं, और ये आपका अनुभव है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज माई एवरीवन। आप गेम खेलने लगो, टाइम ऐसे पता चलता ही नहीं है। तो थिंग्स आर लाइक दैट। कमिंग बैक, आई थिंक क्लियर है सभी को। कमिंग बैक, यस। संजय जी को जोड़ना चाहते हैं अपनी तरफ से, और इट्स फाइन, ओके। सो कमिंग बैक नाउ, ये हुआ हमारा प्राणायाम। प्राणायाम के बाद आ जाता है प्रत्याहार। प्रत्याहार वॉज द लास्ट थिंग दैट इज डन और डेल्ट इन द 3rd चैप्टर, सॉरी 2nd चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है आपका, वो प्रत्याहार की बात करता है। जस्ट अ सेकेंड। up by a staggering 600% due to COVID-19. या संयोगो प्रत्याहार। दिस इज द लास्ट श्लोका ऑफ 2nd चैप्टर साधना पाद। प्रत्याहार पे साधना पाद खत्म हो जाती है, लाइक बहिरंग योग समाप्त होता है। स्व विषय संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारा इवेन्द्रियाणा प्रत्याहारा। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ? प्रत्याहार नहीं है। क्यों? अभी हमारा भोजन हमारी इंद्रियों के द्वारा मन ग्रहण कर रहा है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, त्वचा ठंडा गर्म महसूस कर रही है, जीवा अभी आप खाना खाओगे टेस्ट करेगा, नोस अगल बगल कुछ हो रहा है अभी सुनाई, यानी अभी हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमें आहार दे रही हैं। जब ये बाहर का आहार ना होकर प्रत्याहार, अंतर से आपको आहार मिलने लगे, तो आप किस तरफ बढ़ जाते हो?
प्रत्याहार की तरफ। यहाँ से आपका योग बहिरंग से अंतरंग। अब इसके बाद आसन की स्थिति आपकी सिद्ध हो चुकी है, अब आप हिल डुल नहीं रहे हो, अब लंबा जा सकते हो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, कछुए के समान। अभी कुछ क्षण के लिए प्रत्याहार की अवस्था आपने भी महसूस की होगी, जब ध्यान हमने थोड़ा सा किया, लगा होगा कि थोड़ी देर के लिए सेंसेस आर विड्रॉन, टोटली साइलेंस इज देयर, सो योर माइंड गेट कनेक्टेड टू योर इनर सेल्फ, देयर नो idea of any subject goes on, sorry object goes out, you become connected to। देखो जीवन में तीन चीजें हमेशा घटित होती रहती हैं, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एक एक्शन, एक एक्टिविटी। क्या कर रहे हो अभी? जैसे मेरे लिए सब्जेक्ट क्या है? आई एम द सब्जेक्ट, यू आर समवेयर द ऑब्जेक्ट, कि मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? दैट पतंजलि योग सूत्र। क्लियर? सो प्रत्याहार में क्या है? वापस से विड्रॉल, ऑब्जेक्ट अब धीरे धीरे यहां से वैनिश एंड यू आर विड्रॉइंग योरसेल्फ। तो इंद्रियां यहां क्या है? आपकी निश्चल हो जाएंगी। और इंद्रियों का क्या है काम? आपके मन को बार बार चलाना। भगवत गीता के रथ में जो 5 घोड़े हैं, हमारी इंद्रियां हैं, वो शांत हुए तो अंतर की तरफ हम बढ़ सकेंगे। यहाँ प्रत्याहार खत्म होती है, फिर उसके बाद हम चल ले जाते हैं नेक्स्ट पाद। Imagine this on your resume, a certified expert in ChatGPT and AI tools. That is विभूति पाद। Let's chant the first 3 sutra of dharana, dhyana and samadhi। विभूति पादः देशबन्धस्य चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्ययकेतान्ता ध्यानम्, तदेवार्थमात्र निर्भासं स्वरूप शून्यमेव समाधि, त्रयमेकत्रम संयमः, तज्जात प्रज्ञालोकः। क्लियर? कमिंग बैक। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा था? आई होप नो वन? फाइन। नाउ सर आप म्यूट हैं। नो प्रॉब्लम। यस यस। नाउ धारणा। सबने बचपन में कागज जलाया है लेंस का यूज करके? एक लेंस का यूज करके पेपर जरूर जलाया होगा सूर्य के प्रकाश से। वह एक एग्जाम्पल है कंसंट्रेशन और फोकस का, कि अलग अलग जब सूर्य की रेस थी तो कुछ नहीं हो रहा था उससे, जब जैसे ही आपने उसको एकाग्र कर दिया तब उससे आप ध्यान की तरफ बढ़ सकते हो। तो ध्यान से पहले धारणा जरूर होगी। हमने ओमकार जप करके धारणा की थी। आप निद्रा के लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन नींद में जा नहीं सकते कि अभी मैं तुरंत सो जाऊंगा। नो, वो बात अलग है, थके हो तो सो जाओ। सो धारण करना, जैसे आप किसी माला को धारण करते हो तो फिर उसके आपको कुछ बेनिफिट्स मिलने लगते हैं। सो देश बंधस्य चित्तस्य धारणा। देश क्या है? ये हमारा पूरा शरीर या फिर शरीर के बाहर की कोई वस्तु, यानी ग्रॉस से सूक्ष्म। लेकिन हम देख पाएंगे हम प्रत्याहार की अवस्था में है तो बाहर से तो हमारा कनेक्शन कट ऑफ हो चुका है। तो अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? शरीर के अंदर अपने चित्त को, अब यहाँ पे अलग अलग, जैसे आप कमेंट्रीज पढ़ोगे तो बताया है, आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे तो अलग अनुभूति, अपनी जीवा के टंग पर आप ध्यान करोगे अलग अनुभूति, थ्रोट चक्र अलग अनुभूति, हार्ट चक्र अलग अनुभूति, नेवल सेंटर अलग अनुभूति। तो इस देश में अपने चित्त को बांधना किसकी तरफ ले जाएगा? आपको धारणा की तरफ ले जाएगा।
इसीलिए शुरू में हमने अपने चित्त को किसी मंत्र पे या तो धारण किया। क्यों धारण करना है? जिससे कि हमारा जो चित्त इधर उधर था, अब क्या है, प्रत्याहार के बाद वो एकाग्र हो गया। सो नाउ धारणा इज कंटिन्यूअसली आप ओम ओम ओम, नथिंग एल्स, ओनली दैट सब्जेक्ट। एक आपने ऑब्जेक्ट लिया, बस उसी का निरंतर जप। तो ये है लंबी, जब ये धारणा कई समय तक आप करते जाओ तो ये धारणा में परिवर्तित, धारणा किया जाएगा। इट इज अ एक्शन दैट वी आर डूइंग। जब ये निरंतर करते रहेंगे तो एक ऐसी अवस्था आएगी, तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तत्र आफ्टर धारणा, प्रत्यये अगेन एंड अगेन, तांता ध्यानम, जिस विचार का आप ध्यान कर रहे हो वो निरंतर कंटिन्यूअसली अपने आप फ्लो होने लगेगा। कैसे? एक नदी के प्रवाह की तरह, निरंतर, बिना रुके, बिना निरंतरता। उसी तरह अपने आप, जैसे आपने नींद में एक बार चलेगा, फिर निरंतरता जब तक उठते नहीं हो वो चलती रहती है। दैट वन। अब यहाँ से यहाँ में और कनेक्ट करना है कि ध्यान, जैसे हमने पहले देखा था, वृत्तियाँ हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर बहुत चलती रहती हैं, लेकिन एक ही वृत्ति को आप पकड़ो और उसको और गहरा लंबा जब करते जाओगे, धारणा करोगे, तो माइंड फोकस होगा, कंसंट्रेट होगा, अवेयरनेस कंसंट्रेट होगी। और वही कंसंट्रेशन जब लंबा हो जाए, लंबे समय तक चलता जाए, आपको पता भी ना चले कब इतना समय बीत गया, तो दैट इज योर ध्यान की अवस्था। इसको समझाने के लिए एक और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक पॉट है, उसके अंदर ऑयल भरा हुआ है और उसके अंदर एक होल है, तो ऑयल कैसे निकलता है? एक कंटिन्यूटी, एक यूनिफॉर्मिटी फ्लो के साथ। तो ध्यान में भी व्यक्ति जिसका धारणा की है, उसका ध्यान उसको अंतर से ही, इंट्यूशनली ही गेट कनेक्टेड टू दैट ऑब्जेक्ट। तो शुरू में क्या था? सब्जेक्ट, मेडिटेटर, मेडिटेशन, सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। जैसे ही धारणा करी किस पे? सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन पे, मेडिटेशन किया, तो धीरे धीरे जो सब्जेक्ट था वो नल हो गया। अब क्या है? सिर्फ मंत्र है और प्रोसेस है मेडिटेशन की। अब जब यही लंबे समय तक चलती रही तो जो हमारे चित्त को, बुद्धि को विक्षिप्त करने वाले अलग अलग वृत्तियां थीं, वो कहाँ हमें ले जाएंगी? फाइनली समाधि की तरफ। समाधि का क्या परिभाषा दी पतंजलि? तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेवार्थ मात्र, ओनली, निर्भासम स्वरूप, शून्य। जो स्वरूप है, जो ध्यान करने वाला, वो क्या हो गया? शून्य हो गया। में वो समाधि, और जिस पे ध्यान किया जा रहा था बस उसी का ध्यान होने लगे, तो दैट मीन्स हम कहाँ एंटर कर गए? हम समाधि पे एंटर कर गए। स्वरूप, अभी हमारा स्वरूप कहीं ना कहीं हम क्या अपने ईगो से कनेक्ट होते हैं। तो व्हेन यू गॉट इनटू समाधि देयर इज नो फंक्शन ऑफ द ईगो। याद होगा सभी को, आनंद, वितर्क विचार, आनंद अनुगमात समाधि, अस्मिता। वहां हमने देखा था दैट ईगो इज ऑल्सो देयर इन दैट संप्रज्ञात समाधि। बट जब आप इधर बढ़ रहे हो आगे की तरफ कि निरंतर फाइनल, तो ये समाधि क्या है? स्वरूप शून्य में समाधि, स्वरूप की शून्यता हो जाए। जैसे एक लहर है, नदी के किनारे पे लहर, समुद्र के किनारे पे आई है, स्वरूप एक ईगो क्रिएट हो गया, इंडिविजुअलिटी क्रिएट हो गई। अब क्या है? वापस उसने जर्नी शुरू करी समुद्र की तरफ, पुनः मिल गई समुद्र में, तो उसका स्वरूप खत्म हो गया, लेकिन उसका होना खत्म नहीं हुआ। समुद्र में जाके अगेन इट बिकम दैट कंप्लीट, दैट होल। समाधि का अनुभव क्या है? आपको सम मीन्स दैट बैलेंस, आदि मीन्स बुद्धि कहा जाता है। जब आप बुद्धि से भी परे चले जाओ, आपका जो इंटेलिजेंस है वो शून्य हो जाए। शून्य कैसे हुआ? जब हमने धारणा और ध्यान किया। अब इसमें बीच में आपके साथ दो परेशानियां और आएंगी। जब हम ये गतिविधि करते हैं तो हमें क्या होता है?
बहुत हमारी हमारी पूर्व की स्मृतियां हमारे मन में आ जाती हैं, होता है ना। अब बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे मन के अंदर बैठी हुई चीज़ें अब धीरे धीरे बाहर निकल के आने लगेगी। तो इसीलिए आपको ध्यान होगा, जब हमने बात की थी तो समाधि से क्या होगा, जो क्लेश हैं उनकी निवृत्ति, क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। इसीलिए क्या कहा गया था, तीव्र संवेगानाम आसनम। ऐसा नहीं कि आज ही आपको ध्यान में बहुत ज़्यादा लाइट दिख गई या भगवान के दर्शन हो गए, खत्म। ध्यान तो निरंतर चलता रहना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता झाड़ियों में कितने जानवर छिपे हुए हैं, कौन सा जानवर आपको कहाँ जाके अटैक करने वाला है। क्लियर। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे होते हैं, ऐसा नहीं कि अरे जब आएगा कोई हमें मारने के लिए तब हम बैठेंगे यहाँ तैयार होके, नहीं, दे आर ऑल द टाइम अलर्ट। उसी तरह एक योगी की चेतना भी हर क्षण हर वक्त पूरी तरह से चेतन है, अवेयर है कि मेरे अंदर से कौन सी चीज़ व्यक्त होगी। इसीलिए ध्यान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली मेडिटेशन will take you to that awareness of your inner sanskaras, past sanskaras, past tendencies। और वही धीरे धीरे हम देखते होंगे, जो लोग आप में से मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी बहुत सारे संस्कार मुश्किल है चेंज करना, लेकिन नामुमकिन है, तो धीरे धीरे बदलते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत कहाँ से की, यम नियम आसन। कोई बात नहीं, मन अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, मन को छोड़ दो, आसन करते हैं। आसन से हमने तत्वद्वंद्वा निबिघाता किया, एफर्टलेस किया। फिर हम कहाँ पहुँचे, प्राणायाम। प्राणायाम पहुँचे तो हमने मन को थोड़ा और स्थिर किया, धारणा की अवस्था पैदा की, और फिर हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इट्स अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, साधारण सा सिंपल। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ जादू है या कुछ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये सिंपल सा एक प्रोसेस, जैसे आके एक पौधा लगाते हो, पौधा लगाया, बहुत सारे उसमें हो सकता है झाड़ फूक उगाए, तो आपको उसको निकालना होता है, उसमें पानी भी डालना है, मैन्योर भी डालना है, और फिर इंतज़ार करना है कि कब उसमें फूल और फल लगेंगे। सिंपल है। सो ध्यान का जो फल और फूल है वो क्या है, अंत में समाधि का लाभ। और जब बार बार व्यक्ति समाधि में जाएगा तो फिर अंत में क्या है, वो केवल जो अंतिम पाद है, जो अभी हम कवर नहीं करने वाले मे भी हम कभी करें, तो वो केवल की तरफ बढ़ेगा। समाधि अंतिम नहीं, समाधि तो एक प्रक्रिया है उन क्लेशों को तोड़ने की जो हमारे अंदर जन्म गए। जैसे आपको ध्यान होगा, कई लोग कहते हैं कि जब कृष्ण सुना रहे थे भगवद गीता, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए टाइम को होल्ड कर दिया, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब कैसे, जैसे नहीं अभी मैं आपको कहूँ फुल स्टॉप, नो वन विल मूव, गेम खेलते हैं हम लोग, सब अवेयर है, सब कुछ है, ऐसा नहीं आप खत्म हो गए, लेकिन कुछ देर के लिए। तो समाधि में आपके वो क्लेश हैं कुछ दिन के लिए पोटेंशियल बीज फॉर्म में चले जाते हैं। पानी को जमा दो, क्या मूवमेंट होगा उसमें? नहीं। उसी प्रकार हमारे मन के साथ, और मन भी हम साइकोलॉजी में देखेंगे, जो दिख रहा है वो तो सिर्फ 5% मन है। रियल मन तो आइसबर्ग की तरह है, वो छोटी सी चोचनी, उसके अंदर जो है रियलिटी वहाँ है। समुद्र की जो ऊपर परत दिख रही है वो रियलिटी नहीं है। समुद्र के अंदर जब गोता लगाओगे रियल में, तो सच्चाई वहाँ। कितने लोगों ने वो किया है डाइविंग, सी में कभी मौका मिला हो तो? देखो ममता जी हैं, श्रीवास्तव जी, मैंने नहीं किया बाय द वे, गॉड सी कब मौका मिले। बट फिर आपने देखा होगा कितना सुंदर है अंदर से समुद्र, बाहर से नहीं दिखता है। तो बस मैंने कनेक्ट किया है, बट ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, बट इससे शायद हम कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि हमने समाधि तो अनुभव की नहीं, लेकिन इस अनुभव को आप उससे रिलेट कर सकते हो। 100% दिस एक्सप्लेनेशन इज नॉट 100% इक्वल टू मे बी दैट, क्लियर? तो इट्स अ रिलेटेबल एक्सपीरियंस, कि जो हम जानते हैं वहाँ से हम वहाँ जाने का प्रयास कर रहे हैं जो हम नहीं जानते और हमने नहीं अनुभव किया। तो यहाँ पे हमारा होता है समाप्ति, क्लियर? सो आपने देखा होगा, इसमें एक पॉइंट और है, वो हम किसी दिन क्लास में डिस्कस करेंगे, कि पतंजल योग सूत्र के प्रिंसिपल्स को अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो इससे हम हेल्थ और वेलनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। क्या हम शरीर जो बीमारियां, मन में क्लेश पैदा हो रहे हैं, दूर कर सकते हैं? यस। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश।
दूसरा सबसे बड़ा कारण है इनर ऑब्स्टेकल, व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरक्ति। और जब हम क्रिया योग, अष्टांग योग का पालन करेंगे तो हमें कोई भी छू नहीं सकता। क्लियर? फाइनली ममता जी की बर्ड भी आ गई सुनने के लिए और यहाँ पे हो गई हमारा शांति। बताइए कोई प्रश्न हो तो। हमने काफ़ी कुछ देखा पतंजलि योग सूत्र में। बाय द वे किसी ने मुझे पूछा था कि सर लास्ट एक मैं बस सूत्र बता देता हूँ आपको लास्ट चैप्टर का। यस, लास्ट चैप्टर का जो पहला सूत्र है वो है जन्म औषधि मंत्र तप समाधिजा सिद्धि ही। आप लोगों के लिए बस कि आखिरी सूत्र वो है हमारा जन्म, और सबसे कम श्लोक क्या है हमारे सूत्र लास्ट चैप्टर में, दैट इज ऑनली